Hello class 10th student. Today in this video we will study the remaining part of the chapter life processes. And in this part we will study transportation and excretion. Human being like other multicellular organism need regular supply of food, oxygen etc. तो ह्यूमन बींग और उसके जैसे दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन सभी को रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत है फूड की और ऑक्सीजन की। मीन्स रेगुलरली वो फूड को इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को भी वो लेते रहते हैं। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ a pumping organ that is heart and blood vessel are arteries and veins, a circulatory medium, these are blood and lymph. Now we will study the blood circulation in human heart. अब human heart में blood का circulation कैसे होता है we will understand this. At first human heart that is cleansed fist size thick muscular and contractile organ that pumps blood through the body. तो जो हार्ट है हमारी मुट्ठी के जैसा, इसका बंद मुट्ठी की तरह इसका जो साइज़ है, एंड दैट इज़ थिक एंड मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन एंड दैट पंप ब्लड थ्रू दी बॉडी, और पूरी बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है. इट इज़ रेडिश ब्राउन एंड कोनिकल. इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है एंड कोनिकल. यू कैन सी द कोनिकल पार्ट ऑफ दिस एंड लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स. तो लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है. इट इज़ लोकेटेड देयर. इट्स पॉइंटेड साइड कॉल्ड एपेक्स, और इसका जो पॉइंटेड साइड है यू कैन सी दिस पॉइंटेड एंड इट इज़ कॉल्ड एपेक्स. The heart is protected by a two-layered sac surrounding the heart. We surround the heart and it protects the heart from mechanical injuries and allows the frictionless movement of heart. And that sac, that two-layered sac is called pericardium. तो that is transparent and thin and two-layered sac जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो pericardium protect the heart from mechanical injuries and allows the frictionless movement of the heart. तो outer layer of the heart that is pericardium. Now we can understand the heart. The heart, human heart is four chambered. As you can see here are four chamber. First, second, third and fourth. The human heart is internally the human heart is four chambered and has two auricles and two ventricle, and that is also called the atrium. This is right atrium and this is left atrium. This is right ventricle and this is left ventricle. Means the heart has four chamber. The human heart has four chambered. First chamber that is right atrium, then left atrium and right ventricle, left ventricle. So what is the function of atrium? Atrium receives the blood from the vena cava, and this is the vena cava from upper body, and it is also called superior vena cava, and this is the vena cava from the lower part of the body. This is called inferior vena cava. तो जो ह्यूमन हार्ट है इसका जो राइट एट्रियम है, मीन्स जो राइट एट्रियम जो फर्स्ट चैम्बर है इसका राइट एट्रियम, इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. देखिए आप रिसीव कर रहा है ये ब्लड को यहाँ से, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो दोनों अपर पार्ट्स बॉडी के अपर पार्ट से भी ब्लड इसमें आ रहा है और लोअर पार्ट से भी ब्लड इसमें आ रहा है. एंड कैसा ब्लड आ रहा है? इट इज़ दिस ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड एंड वी कैन से दिस इज इम्प्योर ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट एट्रियम इसको रिसीव कर रहा है. तो राइट ऑरिकल या एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट बाय द सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा, वाइल द लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट जो नेक्स्ट चैम्बर है हमारा लेफ्ट एट्रियम, इट ऑल्सो रिसीव्स द ब्लड. इसमें भी ब्लड आ रहा है एंड दिस ब्लड इज कम्स फ्रॉम द पल्मोनरीज वेन. यू कैन सी द पल्मोनरी वेन. तो ये ब्लड जो यहाँ आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, दिस इज फ्रॉम द pulmonary veins and this blood is oxygenated or we can say pure blood. So in left atrium the blood is pure blood that is from the pulmonary vein, और ये आता है pulmonary vein से. और कहाँ से आएगा ये blood? yes, this blood come from the lungs.
और प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से। और इम्प्योर ब्लड आएगा कहाँ, राइट एट्रियम में। और कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से। और यहाँ ब्लड कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, और आएगा कहाँ, लंग्स से। तो यहाँ जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, दैट इज़ फ्रॉम द लंग्स। नाउ द इम्प्योर ब्लड दैट इज़ इन द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड है, देन इट ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड कहाँ चले जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, और सबसे पहले ऑरिकल्स की हम बात करते हैं, मीन्स एट्रियम की। तो एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में, मीन्स राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल होती है। हियर इज अ वॉल दैट इज कॉल्ड इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ये वॉल है इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। वो दो टाइप के ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, मीन इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड, मीन्स टू टाइप्स, वन इम्प्योर एंड सेकेंड इज प्योर। तो प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से आपस में जो ये सेप्टम है, दैट इज इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, ये इसको प्रिवेंट करती है दोनों ब्लड को मिक्स होने से। मीन्स इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों को आपस में मिक्स नहीं होना है, तो इसकी प्रिवेंटिंग के लिए ये सेप्टम यहाँ पे फंक्शन करता है। देन दिस ब्लड, दिस इम्प्योर ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो राइट एट्रियम gives the deoxygenated blood to right ventricle, while the left auricle gives the oxygenated blood to left ventricle. And opening of auricles into ventricle means opening जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है, you can see this opening here, आप इस ओपनिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे एरो से दिखा रखा है। तो ये ओपनिंग जो है, that opening is गार्डेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, या इसको हम कह सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पर एक वॉल्व होती है जिसका फंक्शन है, जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड दिस वॉल्व अलाउज ओनली द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसकी वजह से, इस वॉल्व की वजह से, इस वॉल्व की वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मीन्स ब्लड यहाँ से इस एट्रियम से वेंट्रिकल में तो चले जाएगा, बट वेंट्रिकल से वापस जो है ऑरिकल में या एट्रियम में नहीं जाएगा। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इसका जो फंक्शन है, जो वॉल्व है, इन वॉल्व का फंक्शन है इस ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, मीन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रोवाइड करना एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ लेफ्ट एट्रियम, अब लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, दिस गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड यहाँ पर भी वॉल्व है, एंड दिस वॉल्व इज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मीन्स ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जाएगा, बट इट डू नॉट गेट बैक, पर ये बैक नहीं जाएगा। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम वॉल्व का होता है। नाउ एंड ऑल्सो दीज एट्रियम आर नोन एज, इन एट्रियम्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल्सो फ्रॉम द लंग्स। मीन्स जो लेफ्ट एट्रियम है वो लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है, एंड राइट जो एट्रियम है वो बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है। मीन्स दोनों रिसीविंग चैम्बर हैं। मीन्स अपर टू चैम्बर, मीन्स राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर, एंड वेंट्रिकल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। अब वेंट्रिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहते हैं, क्योंकि इनका जो काम है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ब्लड को बॉडी पार्ट्स में और लंग्स तक ले जाना होता है। तो ये फंक्शन है वेंट्रिकल्स का, एंड वेंट्रिकल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। मीन्स द वेंट्रिकल्स आर लोअर, लार्जर, थिक वॉल चैम्बर,
अब जो वेंट्रिकल्स हैं ये थिक वॉल चैम्बर हैं एंड लोअर चैम्बर है लार्जर चैम्बर है. दे आर दीज टू चैम्बर्स आर लार्जर देन द एट्रियम. मीन्स दो एट्रियम जो दो चैम्बर्स हैं हमारे पास इनसे लार्ज है ये वेंट्रिकल जो है इनसे लार्जर चैम्बर्स हैं. एंड दीज एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स. वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. अब ये हमने देखा कि जो एट्रियम है दीज आर द थिन वॉल्ड बिकॉज दे हैव टू ओनली रिसीव द ब्लड एंड वेंट्रिकल्स आर द थिक वॉल्ड चैम्बर and they are thick walled because these have to pump the blood to various organs of the body. अब इसने क्योंकि ब्लड को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाना है, इसको पंप करना है, दैट इज़ वाई इट इज़ थिक वॉल्ड. इसीलिए जो वेंट्रिकल्स हैं दीज आर थिक वॉल्ड चैम्बर्ड. राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखिए जिस तरीके से एक सेप्टम यहाँ पर था जो ऑरिकल दोनों एट्रियम के बीच में ब्लड की मिक्सिंग को इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पर भी एक सेप्टम है एंड दिस इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. एंड दिस सेप्टम प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड. अब यहाँ पर आपको मालूम है कि इम्प्योर ब्लड है इन राइट वेंट्रिकल एंड हेयर इज़ द प्योर ब्लड. तो इन दोनों ब्लड्स की मिक्सिंग को रोकने का काम इस सेप्टम का है. द सेप्टम प्रिवेंट द मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ द डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड. मीन इम्प्योर और प्योर ब्लड को इंटरमिक्स होने से प्रिवेंट करता है. एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं दैट इज़ दिस स्ट्रक्चर. अब ये इस स्ट्रक्चर के पीछे से है. मीन्स ये स्ट्रक्चर दैट इज़ एरोटा, दैट इज़ एओर्टा एंड दिस एओर्टा अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द हाफ एस शेप स्ट्रक्चर. देखिए एओर्टा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ हाफ एस शेप्ड हमको दिखाई दे रहा है एंड दिस इज द बिहाइंड द पल्मोनरी आर्टरी. इसके पीछे से अराइज हो रहा है एंड दिस इज फ्रॉम द अराइजेज एक्चुअली इट इज़ अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स. तो ये बॉडी पार्ट्स में ब्लड को कैरी करता है. मीन्स एओर्टा पूरे बॉडी में इस ब्लड को प्योर ब्लड को ले जाता है, कैरी करता है. देन द पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी आर्टरीज यू कैन सी द स्ट्रक्चर. दिस इज टी शेप स्ट्रक्चर दैट इज दिस स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम द right ventricle and this pulmonary arteries arises from the right ventricle and it carries the deoxygenated blood to the lungs. अब ये जो pulmonary arteries हैं ये deoxygenated blood को lungs तक ले जाती हैं. for what? for the further purification. तो lungs में क्योंकि blood का purification होता है वो ये deoxygenated blood है और उसमें ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है, तो that is why it carries to the lungs this blood. So what is the function of heart? Heart act as a pump which provide force to carry blood to various body part through the blood vessels and then back to the heart. तो ये heart का function है. And now blood. And blood is classified into solid component that is blood corpuscles and liquid component that is plasma. And blood corpuscles that solid component classified into RBC, WBC and blood platelets. And liquid component is plasma. What is the function of RBC? These carry the oxygen and carbon dioxide and it contain the hemoglobin that gives the red color to the blood. And blood platelets, these help in blood clotting. तो blood की जो clotting है, clotting में help करते हैं, blood clotting में. At the injury, these release an enzyme called thromboplastin which causes the coagulation of blood, means clot formation, to prevent the excessive bleeding. And WBC, it provide body defense by engulfing the germ cell and producing the antibodies. And liquid component that is plasma, a yellow color fluid contain 90% of water and 10% of organic substances like plasma protein, albumin, globulin and inorganic material ions. So like plasma, blood plasma, it also formed of water, inorganic compounds and organic compound but has less of calcium, phosphorus and protein than the blood plasma, and plasma has this quantity. Now lymph, a yellowish fluid. Lymph is a yellowish fluid and there is escapes from the blood capillaries into the intracellular spaces contain less protein than blood. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting the transportation and destroying germs. So lymph is a white vascular connective tissue and it is translucent and alkaline fluid present in the lymph vessel. जो lymph है वो lymph vessels में flow करता है and act as a tissue fluid. ये tissue fluid की तरह काम करता है.
बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में. नाउ ब्लड वेसल्स आर क्लासिफाइड इनटू आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. तो जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, मतलब हार्ट से ये, क्योंकि हार्ट का जो काम है वो पंपिंग करने का है ब्लड को, तो जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. बट जो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन है वो इससे जस्ट अपोजिट है, इट कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड. एंड आर्टरीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, और इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के रूप में भी जानते हैं क्योंकि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू द बॉडी. एंड दीज आर थिक एंड इलास्टिक, और इनकी जो मसल्स हैं दीज आर थिक एंड इलास्टिक. These are made up of thick and elastic muscles. And veins carry deoxygenated blood from body parts to the heart, except the pulmonary vein. तो जो veins का function है, these carry deoxygenated blood. जो veins है वो deoxygenated मतलब impure blood, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो इस ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट. तो बॉडी पार्ट से ये deoxygenated ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. बट पल्मोनरी वेन का जो फंक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट है, इट कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड. एंड वेन्स ऑल्सो कॉल्ड द कलेक्टिव वेसल, इसको हम कलेक्टिव वेसल्स के रूप में भी जानते हैं. एंड दीज आर मेड अप ऑफ थिन एंड लेस इलास्टिक मसल्स. नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट में दो है मेन कंडक्टिंग पाथवे, जैसे फूड का और वाटर का कंडक्शन होता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो फंक्शन ऑफ जाइलम इज दीज कैरी वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. तो जाइलम का जो फंक्शन है, दीज आर द वेसल एंड कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स को रूट से प्लांट के सारे पार्ट्स में ये ले जाती हैं. नो एनर्जी इज़ यूज्ड, तो जाइलम के थ्रू कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है. एंड फ्लोएम, दिस कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. अब फ्लोएम का जो फंक्शन है, दिस कैरीज द फूड मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, व्हाट इज दैट इज फूड. एंड दिस फूड फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि जो लीफ का फूड का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज द ऑन द लीव्स में फूड प्रोड्यूस होता है. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो ये जो प्रोड्यूस्ड फूड है, द फ्लोएम कंडक्ट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्योंकि फूड की नीड पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स को है, तो इट विल कंडक्टेड थ्रू द फ्लोएम टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. एंड एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. एंड नाउ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ट्रांसपिरेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर्म फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है पानी के लॉस होने की वेपर की फॉर्म में, उसके एरियल पार्ट, जो कि जितने भी पार्ट उसके मीन्स जो रूट है वो अंडर द सॉइल है, और रूट के अलावा जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. एंड फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द क्रिएटिंग पुल, इसको हम पुल कहते हैं. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का अपवर्ड मूवमेंट, पानी जो है रूट्स जो है उसको ऑब्जर्व करती हैं और मिनरल्स को, और ये पूरे जो प्लांट है उसके पार्ट्स में सारे मिनरल्स और वाटर जो है वो पहुंचाए जाते हैं. एंड हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और इसका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का, अगर ट्रांसपिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है उसमें टेम्परेचर का रेगुलेशन बना रहता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स means the leaves are also known as food factory to different parts of the plant is called translocation. तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है लीव्स से डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन. नाउ एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती है उसके बाद जो हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसका बॉडी से रिमूव होना भी नेसेसरी है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स. अब मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरेथ्रा. यू कैन सी इन द डायग्राम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी. You can see in this diagram the kidneys, the pair of kidney,
and these are the main and primary excretory organs of man, and these are one pair of large size, that is brown colored and bean shaped structure present in the upper part of the abdomen along the dorsal body wall. And internally each kidney is formed of about 1 million uriniferous or renal tubules or nephron we can say. तो जो किडनी है, तो each kidney is formed of, each kidney has about 1 million of nephrons. तो किडनी में जो है लगभग 1 million तक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. नेफ्रॉन्स आर दी एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो मेन जो नेफ्रॉन है, दीज आर द एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. देन दी यू कैन सी द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दीज यू कैन सी द यूरेटर. तो यहाँ जो यूरिन फॉर्मेशन होता है थ्रू द यूरेटर, इट गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड this is the urethra, that is urinary opening. Means when the pressure increased inside the urinary bladder, it goes through the urinary opening. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो यूरिन जो प्रोड्यूस होती है किडनी में वो यूरेटर के थ्रू पास हो जाती है. यू कैन सी द यूरेटर इन द डायग्राम. एंड ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है जब तक कि उसको यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज नहीं होना होता है. द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट. अब देखिए यूरिन जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसका पर्पज़ क्या है, यूरिन फॉर्मेशन होता क्यों है. तो मेन पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज़ यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. तो मेन पर्पज़ जो है इसका फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करना फ्रॉम द ब्लड में से, दैट इज़ यूरिया. और मेन है वो यूरिया जिसका कि प्रोडक्शन होता है लीवर में. एंड ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, दीज आर दी नेफ्रॉन्स. एंड द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है 3 स्टेप्स में होता है, दैट इज, एंड द फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन. तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू वोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन के जो वोमेन कैप्सूल है दैट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वोमेन कैप्सूल. तो दिस इज द नेफ्रॉन एंड दिस यू कैन सी द वोमेन कैप्सूल. एंड इट इज़ अ डबल वॉल्ड कप, दैट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स. तो ये पोर्शन जो है दैट इज द रीनल, आप डॉटेड लाइन के ऊपर देख सकते हैं, दिस पोर्शन इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड इट इज प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स. इट इज लाइन्ड बाय द थिन एंड सेमी परमेबल एपिथेलियम ऑफ अ फ्लैट सेल. एंड इन केस ऑफ एंड दिस glomerulus act as ultrafiltration. This is the site of ultrafiltration. And second is tubular reabsorption. Now the useful substances from the filtrate. जो nephric filtrate है जो वुमेन कैप्सूल में फॉर्म हुआ, that nephric filtrate are the reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephron. तो नेफ्रॉन के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज है उसके द्वारा ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है. एंड द सिक्रेशन, extra water salt are secreted into the tubule which opens up into the collecting duct then into the ureter. और उसके बाद वाटर सॉल्ट के साथ जो एक्स्ट्रा जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेटेड हो जाता है ट्यूब्यूल्स में एंड द ट्यूब्यूल्स ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है. उसके बाद देन इनटू द यूरेटर, और यूरेटर से कैरी करते हैं इन द यूरिनरी ब्लैडर. एंड मेन इज द हीमोडायलिसिस. एंड व्हाट इज द हीमोडायलिसिस? The process of purifying blood by an artificial kidney. It is meant for kidney failure patient. अब हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है इसकी नीड हमें क्यों होती है? तो why do a person need the hemodialysis? You know that the kidney are excretory and osmoregulatory function and expel the nitrogenous waste, excess of water, pigment, etc. so as to maintain hemostasis inside the body. The number of causes decrease the activity of kidney called renal insufficiency or renal failure we can say, and that is the certain pathogenic infection, injury और obstructed blood flow. ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण जो रीनल फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है. एंड नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट में जो एक्सक्रीशन है, ऑक्सीजन
CO2 and water, and these expelled out through the stomata and the process of transpiration. This process is known as transpiration. Other waste may be stored in the leaves, bark etc. which fall off from the plant. दूसरे वेस्ट जो है वो लीव्स में स्टोर हो सकते हैं जैसे, और बार्क में हो सकते हैं जो कि प्लांट से अपने आप ही उसमें से फॉल आउट हो जाता है. प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम. अब जो प्लांट है वो कुछ वेस्ट को सॉइल में भी एक्सपेल कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है. एंड दीज आर द एक्सक्रीशन प्रोडक्ट गम, रेजिन इन ओल्ड जाइलम. हम देख सकते हैं इसको, गम्स और रेजिन जाइलम से निकलते रहता है. प्लांट में जो रेजिन है उसका एक्सक्रीट होना, उसका निकलना हम देख सकते हैं. सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ कोलोकेसिया एंड द स्टम ऑफ जमीगंध और कोलोकेसिया के स्टम्स में हम देख सकते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स का की फॉर्म, क्रिस्टल के फॉर्म्स में. ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है इन द प्लांट.